Okay. Next sum, again on exercise 3a, e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x minus 1. If you look at this sum, no part is derivative of any other part. No hints at all. Minus 1 का constant 0 है, 1 का derivative भी 0 है. So I am helpless right now. So the basic technique in this sum is only one, that is I divide everything by e raised to x. हर एक को मैं e raised to x से divide करूंगा. Let us see what we get. E raised to x, e raised to 2x upon e raised to x minus 1 upon e raised to x. ठीक है? So this becomes e raised to x plus e raised to minus x. My denominator will become e raised to x minus e raised to minus x. So what benefit I got? You can see that now denominator का derivative numerator है. e raised to x का derivative e raised to x minus e raised to minus x का derivative plus e raised to minus x. मतलब complete denominator का derivative क्या है? Numerator. That is I can say e raised to x minus e raised to minus x equals to t. Apply derivative. So e raised to x का e raised to x minus e raised to minus x का minus x का minus 1 dt अपॉन dx है ना. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस e raised to minus x dx ऊपर लेंगे equal dt. Can you see the complete numerator is coming as dt now? Yes. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस न्यूमरेटर dx क्या हुआ? dt. डिनोमिनेटर क्या हुआ? मेरा t. What is dt upon t? Log t. Log t plus c. That is log क्या है डिनोमिनेटर? e raised to x minus e raised to minus x plus c. Now see, from here I can derive a relation that अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव पार्ट है एंड डिनोमिनेटर में उसका क्वेश्चन है, दैट इज इफ माय सम इज ऑफ दिस टाइप f डैश x अपॉन f ऑफ x dx. क्या है? डिनोमिनेटर में देयर इज सम क्वेश्चन एंड उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, देन I can directly write the answer as log of denominator, that is log of f of x plus c. So henceforth you can also use this formula, integration of f dash x upon f of x is equal to log f of x. अगर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, तो my answer is log of denominator. ठीक है? Let's move on to next sum now. It is integration of sin raised to 4x cos cube x dx. Now see, the big problem is sin का डेरिवेटिव cos है, cos का डेरिवेटिव sin है, तो which you will choose? That's the problem. So choose the one which is having odd power. Why? ताकि उसमें से एक पावर गायब हो जाए t के साथ, rest powers are even and even powers have identities. So मैं क्या करूंगा? मैं cos x को t पुट करूंगा. Let's try both of them. If this goes wrong, we'll switch over to other. So this is wrong. We'll put sin x as t. किसको t पुट करेंगे? sin x को t पुट करके देखते हैं. sin x को t पुट किया तो cos x dx क्या होना चाहिए? dt होना चाहिए. क्या होना चाहिए? cos x dx dt. तो देखो sin x क्या है मेरा t, यहां पर sin raised to 4x है, क्या हो जाएगा? t raised to 4 है ना, इनटू एक cos x dx क्या हो गया? dt. तो एक cos x dx तो dt हो गया, बट अंदर क्या रह गया? cos square x. एंड एज आई टोल्ड वन साइड राइट t, x नजर नहीं आना चाहिए. सो व्हाट इज cos square x? 1 माइनस sin square x है ना. क्या आएगा? 1 माइनस sin square x. और मेरा sin x क्या है? t. तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? वो t स्क्वायर. क्या हो जाएगा?
टी स्क्वायर। तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स जगह पे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। दैट्स व्हाई माय प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन वाज रॉन्ग। अब ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 4 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 6 dt। ठीक है, नाउ इट इज वेरी सिंपल। इसका आंसर आएगा टी रेज टू 5/5, इसका 7/7 प्लस c। Now you will resubstitute the value of t। t कितना है अपॉन 5 और ये कितना है 7। ठीक है, अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर सम नाउ। वन ऑफ माय फेवरेट सम, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4x प्लस 5x raised to minus 11। We know that we don't like negative numbers, so what I will do, I will make this positive। ठीक है, उसको पॉजिटिव बनाया कैसे, 4x प्लस 5 अपॉन x रेज टू 11। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 4x इंटू x 11 x टू द पावर 12 प्लस 5 अपॉन x टू द पावर 11। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू 11 dx अपॉन 4x टू द पावर 12 प्लस 5। नाउ instead of using t dt, I will do something else and use that formula, integration of f dash x upon f of x dx is log f of x to explain you। ठीक है, देखो कैसे, फाइव का डेरिवेटिव क्या है 0, सो दिस इज गॉन। x टू द पावर 12 का डेरिवेटिव क्या आएगा 12 x रेज टू 11। x रेज टू 11 है, क्या मिसिंग है 12 मिसिंग है, तो 12 यहां पर लिखा, 1/12 यहां पर किया। ठीक है, ये 4 भी मिसिंग है, 4x टू द पावर 12 का डेरिवेटिव आएगा 48 x रेज टू 11। मेरे पास कितना है 12, सो आई विल मेक दिस एज 48 और इसको भी कितना बनाऊंगा मैं 48। नाउ पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, कैन यू चेक। इसका डेरिवेटिव क्या है 4x टू द पावर 12 का 48 x टू द पावर 11 5 का 0, तो पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। So I can write 1/48 log of denominator। denominator क्या है 4x to the power 12 plus 5 plus c। Understood? Yes? Okay. Let's move on to next sum. It is integration of x to the power 9 sec square x to the power 10। Now see, ट्रिग्नोमेट्री का थीटा चेन रूल में है, तो सिर्फ थीटा को टी पुट करेंगे, दैट इज x टू द पावर 10 को टी पुट करेंगे, डेरिवेटिव लगाया 10 x टू द पावर 9 dx इक्वल्स dt। ठीक है, मेरे पास x टू द पावर 9 dx है, दिस इज देयर, सो दिस 10 गोज डाउन, सो x टू द पावर 9 dx dt by 10। Therefore इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x9 dx dt by 10। ये क्या है मेरा t, तो हो जाएगा sec स्क्वायर t। 10 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या है tan t, तो आंसर आएगा tan t by 10 plus c, that is tan x to the power 10 by 10 plus c। समझ में आया? नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट और जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, रूट tan x अपॉन sin x cos x। अब यहां पर t किसको पुट करोगे, सो एज आई हैव टोल्ड whichever is under root sign उसके अंदर के पार्ट को t पुट करना है। तो सिंपल हिंट फॉर यू, सो सिंपल आई विल पुट tan x as t।
tan x को t पुट किया, sec square x आएगा, यहां पर कहीं पर भी sec square x नहीं है, so I'll do a simple step, I'll multiply by 2, I'll divide by 2, ठीक है। इससे क्या होगा, लेट्स सी, ये हो जाएगा रूट tan x, है ना, ये हो जाएगा sin 2x, क्या हो जाएगा sin 2x। अगेन there is no relation between tan and sin 2x, so I'll apply the formula of sin 2x in terms of tan, है ना। sin 2x क्या होता है, 2 tan theta upon 1 plus tan square x। देखो, the moment I thought tan x को t पुट करना है, sec square x आना चाहिए, तो देखो 1 plus tan square x क्या हो गया, sec square x, ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट tan x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर का sec स्क्वायर x, और नीचे क्या बचा है 2 tan x, है ना। तो ये 2 और ये 2 कट, रूट tan x अपॉन tan x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इधर रूट आ जाएगा, दैट इज रूट tan x, है ना। अब एक और नया कॉरोलरी देखो, रूट के अंदर में जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में, एग्जैक्ट उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, f डैश x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x, है ना। रूट के अंदर अगर f ऑफ x है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर इज 2 रूट f ऑफ x प्लस c। क्या आंसर आएगा, 2 रूट f ऑफ x प्लस c। अगर नहीं समझ रहा है, tan x को t पुट करो, वही आंसर आएगा। तो देखो, ये मेरा f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव है ये, तो क्या आंसर आना चाहिए, 2 टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, रूट tan x प्लस c। आया समझ में, यस, इज इट क्लियर। नेक्स्ट सम, आया सबको समझ में आ रहा है। This was very easy sum if you get the idea correctly. Next, it is integration of e raised to 3 log x, x raised to 4 plus 1 minus 1। अगेन नेगेटिव पावर आ गया है, तो पहले उस नेगेटिव पावर को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसको नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा e raised to, इस 3 को भी ऊपर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा log x क्यूब dx x टू द पावर 4 प्लस 1। बेस क्या है, e, तो ये कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, x क्यूब dx अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1। तो देखो 1 का डेरिवेटिव 0, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है, 4x क्यूब, x क्यूब है, क्या मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 4 मल्टीप्लाई किया, 4 डिवाइड किया। नाउ कैन यू सी, पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, सो f डैश x अपॉन f ऑफ x, क्या आंसर आता है, log ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड, यस, ओके। नेक्स्ट सम, it is integration of x minus 1 the whole square upon x square plus 1 whole square. इसको algebraically we'll distribute this. I'll open the brackets of numerator. तो क्या आएगा, x square plus 1 minus 2x. Now I will give denominator to both. देखते क्या होता है। So ये और ये कट हो जाएगा, तो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रिमेंबर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट अस सी, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर। यहां पर यू कैन सी एक्स स्क्वायर, ये तो चेन रूल में है पहली बात,
सो एक्स स्क्वायर को t पुट किया तो 2dx क्या हो जाएगा dt। साइन से लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही मैं t पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो क्या हो जाएगा 2x dx क्या आएगा dt। therefore it will become tan inverse x minus 2x dx हो गया मेरा dt, ये पूरा ब्रैकेट मेरा हो गया t, so t स्क्वायर। तो यू नो दैट ये ऊपर जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन टी का, 1 अपॉन टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन टी। याद नहीं आया, टेक दिस टी स्क्वायर अप, इट विल बिकम टी रेज टू माइनस 2, अप्लाई द नॉर्मल फॉर्मूला, सो tan इनवर्स x माइनस t रेज टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस t का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो, द आंसर विल बी tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन t, दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 you will try and 18 you will try, 15 and 18 I will be doing 16 and 17 for you, okay।